Hello dear all students. So now I am going to teach you epithelial tissue in detail. So what actually you know about the epithelial tissue? आप लोगों को सिर्फ यही चीजें पता होगी कि epithelial tissue स्किन में होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ epithelial tissue स्किन में होते हैं, वो बॉडी के काफी सारे पार्ट्स में होते हैं. तो आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं. Epithelial tissue can be defined as these are the type of a tissue which are found on external covering of our body, but they are also found in internal body organ, but most probably external covering of an internal organ. Epithelial tissue कहाँ पाए जाते हैं मैं आपको जनरली बेसिकली बता दूं. Epithelial tissue found on external body covering, but they can also found outer lining of inner organ like pharynx, you can say stomach, heart, kidneys, pancreas, etc. अब आप देखिए epithelial tissue are found on external body covering, मतलब epithelial tissue हमारे स्किन पे अवेलेबल है. ये बात क्लियर हो गई. Epithelial tissue are found on the external covering of our body, means epithelial tissue are present on our skin, but they can also found on outer lining of inner organ. Yes, ये हमारी बॉडी के आउटर कवरिंग पे तो है, इससे कोई डाउट नहीं, लेकिन इपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी एक्सटर्नल लाइनिंग पे भी अवेलेबल है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे इपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी में जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स में भी अवेलेबल है, इसोफेगस में भी अवेलेबल है, ट्रकिया में भी अवेलेबल है. तो ऐसे ऑर्गन्स के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है वहां पे इपिथेलियल टिश्यू अवेलेबल है. इपिथेलियल टिश्यू स्टमक में भी अवेलेबल है और इपिथेलियल टिश्यू हार्ट में भी अवेलेबल है. यस, हार्ट में भी इपिथेलियल टिश्यू होते हैं. मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करता हूं. We know that heart is made by the cardiac muscle, which are involuntary muscle. No doubt, that is absolutely correct. But heart have a three wall. Epicardium, outer layer, made by epithelial cell. Inner layer, endocardium, which are also made by epithelial cell. But middle layer of heart is called myocardium, which is made by cardiac muscle. So cardiac muscle, which is a type of muscular tissue, are only found in middle layer of a heart, but outer epicardium made by epithelial, inner endocardium they are also made by epithelial. So heart epithelial में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप कंफ्यूज मत हो. अगर आपने किसी और जीनियस लोगों की टीचिंग सुनी, उन्होंने कहा होगा कि हार्ट में सिर्फ कार्डियक मसल होते हैं, तो ये गलत चीज है. हार्ट की जो लेयर होती है, 3 लेयर होती है. ऊपर होती है एपिकार्डियम, अंदर की होती है एंडोकार्डियम, और ये दोनों के दोनों इपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं. और जो बीच वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम, जो कार्डियक मसल से बनी होती है. Epithelial tissue are also found on the outer covering of kidney. They are also found in the outer covering of pancreas, and many more organs are there whose outer covering is made by epithelium. Epithelial tissue को ही हम epithelium tissue कहते हैं. वो एक ही चीज है, इनमें से कोई डिफरेंस नहीं. यस, सेकंड पॉइंट देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है. Epithelial tissue have on nervous supply. Epithelial टिश्यू के अंदर नर्वस सप्लाई खुद का होता है. एक्चुअली एक सेंटेंस है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. Epithelial tissue are very compactly arranged, so there is very less or no
intracellular, no intracellular spaces is available. There is no intracellular spaces is available. Yes, ये देखिए सेकंड सेंटेंस में आपको समझा तो पहले थर्ड देख लीजिए. एक्चुअली सेकंड मुझे बाद में लिखना चाहिए था. Epithelial tissue are very compactly arranged, so there is a very less space or no intracellular space. अब ये देखिए ये epithelial tissue है और ये भी epithelial tissue है. ये दोनों आपस में एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं कि उनके बीच में आपस में स्पेस ही नहीं. Epithelial tissues are very compactly connected to each other and therefore they shows very less space or you can say absence of intracellular space. इनके अंदर स्पेस काफी कम दिखाई देती है या तो आप कह लो स्पेस दिखाई नहीं देती है. तो इसके अगर आप सोचो कि इनका अगर स्पेस नहीं है तो इसमें क्या होगा. epithelial tissue will have own nervous supply. इनका खुद का nervous supply होता है. और अगर epithelial tissue compactly arranged है तो blood supply कैसे होगा वो भी आप देखिए. blood you can say epithelial tissue are avascular. What does it mean by avascular? avascular का मतलब क्या होता है. जिसके अंदर ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता है उसे हम कहते हैं avascular. अब आप सोचो कि अगर हम स्किन के ऊपर थोड़ा कट कर दें तो ऑब्वियसली ब्लड निकलेगा और हमारी स्किन तो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है. फिर आप सोचोगे अगर स्किन में एपिथेलियल टिश्यू है तो एपिथेलियल टिश्यू अवास्कुलर कैसे हो सकते हैं. उसका रीजन मैं आपको टेक्निकली बताता हूं, समझ लीजिए. एपिथेलियल टिश्यूज आर अवास्कुलर मींस देयर इज नो ब्लड सप्लाई टू द एपिथेलियल टिश्यू डायरेक्टली उनको ब्लड सप्लाई नहीं होता क्योंकि इनके अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेसेस काफी कम है या तो न के बराबर है. इंट्रासेल्युलर स्पेसेस न होने के कारण उनके अंदर कोई भी आर्टेरियल या तो ब्लड कैपिलरी अंदर नहीं जा सकती. तो अगर ब्लड कैपिलरी अंदर नहीं जा सकती तो एपिथेलियल टिश्यू को फूड, खाना, न्यूट्रिशन ये कहां से मिलेगा. तो समझ लीजिए एपिथेलियल टिश्यू गेट न्यूट्रिएंट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस. अब डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब क्या. ये देखिए ये वाला है हमारी एपिथेलियल टिश्यू. तो ब्लड सप्लाई यहां तक आएगा, ब्लड सप्लाई यहां तक आएगा. ये इनके सेल्स के अंदर तक नहीं जाएगा, यहां तक आएगा. फिर डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्लड साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा. यस, मतलब एपिथेलियल टिश्यू एक दूसरे से इतने कनेक्टेड है कि उनके अंदर आर्टेरियल या कैपिलरी एंट्री कर ही नहीं सकती. और अगर एंट्री नहीं कर सकती तो न्यूट्रन कैसे जाएगा. तो न्यूट्रन जाएगा वाया blood neutron will enter into the epithelial tissue by the process called diffusion process. Yes guys, this is clear to you. I hope so this is clear to you. Okay, a very important thing I am going to tell you. Epithelial tissue can perform diffusion, osmosis, filtration, secretion and absorption. All these important steps can be performed by the epithelial tissue. मैं आपको सबका मतलब बता दे रहा हूँ शॉर्ट में क्योंकि इन सभी टॉपिक के ऊपर तो 15 मिनट का एक्सप्लेनेशन होता है. ये देखिए epithelial tissue can perform diffusion. What is diffusion? Movement of a solute, solvent and gases from higher concentration to that of lower concentration. That is called diffusion. जैसे यहाँ पे ब्लड में न्यूट्रन ज्यादा है और सेल्स में एपिथेलियल टिश्यू में काफी कम है तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जो न्यूट्रन मूव होते हैं उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. एपिथेलियल टिश्यू कैन आल्सो परफॉर्म ऑस्मोसिस व्हिच मींस मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. देन फिल्ट्रेशन. when we are filtering a you can say solvent and solute from the solution,
इट इज सिंपली कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जब हम कोई भी सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में फिल्टर करते हैं उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। मान लो आपके पास, मान लो आपने चावल को भिगो के रखा हुआ है, यस, इफ यू हैव, सो यू कैन से पुटेड द राइस इनटू द वाटर एंड यू वांटेड टू फिल्टर, यू वांटेड टू सेपरेट द राइस फ्रॉम द वाटर, सो व्हाट यू विल डू, you will take a particular filter or either cloth or any sieve मतलब आप कोई छन्नी लोगे या तो कोई कपड़ा लोगे या फिल्टर लोगे, उसमें से चावल को पास करोगे तो पानी निकल जाएगा, चावल अलग हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट फिल्ट्रेशन। एंड देन सीक्रेशन। epithelial tissues are also found in a gland, several glands are there. जनरली जितने भी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं वो ज्यादातर इपिथेलियल टिश्यू से ही बने हुए हैं, और अगर ग्लैंड इपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो सिक्रेशन करेंगे, मतलब क्या सिक्रेट करेंगे, हार्मोन सिक्रेट करेंगे। एंड देन दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एब्सॉर्प्शन। व्हाट एब्सॉर्प्शन? Absorption of some certain juices produced by the pancreas, absorption of some essential substance like a kidney. Yes, kidney undergo selective reabsorption. Generally, proximal convoluted tubule (PCT) part of a kidney undergo reabsorption. So this is the basic things about the epithelial tissue. Now, according to the size, shape and location of epithelial tissue, according to the size, shape and location of epithelial tissue, they are broadly classified under two main categories, like simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. Yes, simple epithelial tissues are further classified under four categories, like a squamous, cuboidal, columnar and glandular, and compound epithelial tissue don't have any classification. So I'll tell you classification right now. So dear all students, this is the classification of epithelial tissue or epithelium tissue front of you. So I'm going to describe this classification in very detail so that every doubt in your mind will be fully sorted out. Yes, let's start. Epithelium tissue are mainly classified into two main broad you can say category, such as a simple epithelium tissue and compound epithelium tissue. What are the simple and what are compound epithelium tissue? Simple epithelium tissues are those tissue which are having single layer of epithelial cell, whereas compound epithelial tissues are those tissue which are having at least more than one layer. It may have a two layers of epithelial tissue or it may have a more than two layers of epithelial tissue. It's called as a compound epithelial tissue. इपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और दूसरी आती है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू ये वो वाले इपिथेलियल टिश्यू हैं जिनकी हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही लेयर होती है, मतलब एक पतली लेयर होती है, इनको हम कहते हैं सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। और कंपाउंड मतलब आपको समझना है तो देखिए, ये मैंने जो शर्ट पहनी है सिंगल लेयर है, तो इसे हम कह सकते हैं इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। लेकिन अगर मैंने इस शर्ट के ऊपर एक दूसरी शर्ट पहनी होती है या तो स्वेट टी शर्ट पहनी होती है, स्वेटर पहना होता बड़ा वाला, तो ये एक सिंगल लेयर है और स्वेटर की दूसरी लेयर, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। सो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर से बना हुआ है, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू दो या तो 2 से 3 लेयर से बना हुआ है। अब ये वाली कंसेप्ट क्लियर हो गई, अब इनको साइड में कर दो। कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू के कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होते हैं, लेकिन सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू का एक एग्जांपल आता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। क्या होता है ये? Stratum germinativum is actually the medical term for the skin. It's a medical term for the skin. Stratum germinativum जो compound epithelial tissue का एक एग्जांपल है। compound epithelial tissue के क्लासिफिकेशन नहीं होते हैं, लेकिन simple epithelial tissue के क्लासिफिकेशन है। compound epithelial tissue does not show any classification, but its example is a stratum germinativum, which is a medical term for the human skin. And simple epithelial tissue further classified into 4 categories on the basis of size, on the basis of shape and position, location of tissue in our body, like squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, columnar। columnar के फिर से 2 कैटेगरी आती है, ciliated और non ciliated। cilia प्रेजेंट है तो ciliated, cilia नहीं है तो non ciliated, और उसके बाद आते हैं glandular tissue। तो इन चारों को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। What are the squamous epithelial tissue? Squamous epithelial tissues are
found in peritoneum cavity and blood vessels lining. We call them as endothelium. So where they are present? They are found in the peritoneum cavity, means abdominal region. And they are also found in the inner lining of a blood vessel. Say for example, artery and veins are made by tunica externa, tunica media, tunica interna. These are made by the squamous type of epithelial tissue. Yes? And these cells are either polygonal in shape, they are having polygonal shape. They are thin in size, and they are delicate, means soft, and they are flat like. What are the flat like? Like this. These are flat like. Yes, and if you see this kind of a cell, if you see this kind of a cell from above, then you will feel that it is a tiles are or marbles are arranged on the floor, and this is simply called it as a pavement epithelium. Squamous epithelial cells are also called pavement epithelium. I am not saying like that. I am saying that epithelial tissues are flat like, and if you arrange them and if you see it from above, you will feel that tiles are arranged on the marbles are arranged on the floor. So this arrangement of epithelial tissue is called pavement epithelium. Epithelial tissue have a nucleus which is centrally present at the location. They are responsible for filtration and they are responsible for diffusion. What is meant by filtration? What is meant by diffusion? That I already taught you and discussed in the introduction to the epithelial tissue. एक बार फिर से समझ लीजिए हिंदी में. इपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी कैविटी में, मतलब पेरिटोनियल कैविटी में पाए जाते हैं और हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर भी पाए जाते हैं. मतलब ब्लड वेसल इनसे ही बनी हुई होती है. इपिथेलियल टिश्यू ये पेरिटोनियम कैविटी मतलब एब्डोमिनल रीजन में होते हैं, और ये हमारे ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है आर्टरी और वेन की, एक्टोडर्म इनके अंदर कैसे होते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना. ये जो लेयर्स हैं ब्लड वेसल्स की, वो लेयर्स भी बेसिकली इपिथेलियल टिश्यू के स्क्विमस से ही बने हुए हैं. इपिथेलियल टिश्यू का जो न्यूक्लियस वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है, और इपिथेलियल टिश्यू की जो शेप होता है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होते हैं. ये थिन होते हैं, सॉफ्ट मतलब डेलिकेट होते हैं. और टाइल्स कैसी होती है? हमारे घर में जो जमीन पे बिछी होती है वे टाइल्स के जैसे अरेंजमेंट होते हैं. और अगर काफी सारे इपिथेलियल टिश्यू को एक साथ अरेंज कर दो और माइक्रोस्कोप में ऊपर से देखो तो आपको ऐसा लगेगा, अगर हम हमारी स्किन को देखें तो अगर इपिथेलियल टिश्यू को अगर हम ऊपर से तो माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि काफी सारी टाइल्स को जमीन के ऊपर बिछाया गया हुआ है, और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं पेवमेंट एपिथेलियम. यस, एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन का ये दो महत्व के इंपॉर्टेंट काम करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्यूबॉइडल एपिथेलियल, आप समझ ही गए होंगे कि इनको क्यूबॉइडल क्यों कहा गया, क्योंकि इनका शेप क्यूब जैसा होता है. ठीक है. क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू दे आर फाउंड इन द थायराइड ग्लैंड एंड आल्सो फाउंड इन द किडनी. मैंने पहले से लिख के इसके लिए रखा क्योंकि वीडियो और ज्यादा बड़ी ना बने और मैं आपको काफी कम समय में अच्छी तरह से समझा सकूं, इसके लिए मैंने पहले से अरेंज करके रखा हुआ है. Cuboidal epithelial tissue are found in thyroid gland. They are also found in the kidney. And cells are cube shaped with a centrally present rounded nucleus. And they are engaged in the three process. Absorption means suction, secretion means production of hormone like something, and excretion means removal of waste material. अब यहाँ पे देखिए they are also found in the thyroid gland. So thyroid gland will secrete hormones, so their function is secretion. They are also found in the kidney, so they will be able to absorption. PCT generally involved in absorption of some important substance. They are also involved in the removal of waste material like urea, uric acid, ammonia. So they are also found in kidney. So we can understand excretion. Generally thyroid gland, cuboidal epithelial tissue को क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके जो सेल्स का जो शेप है वो सब क्यूब के जैसा होता है, इसके लिए हम इनको कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू. और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू हमारे थायराइड ग्लैंड में भी अवेलेबल होते हैं जो कि नेक रीजन है, और किडनीज में भी अवेलेबल है. और एपिथेलियल टिश्यू क्यूबॉइडल वाले इनके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप होते हैं, तभी हमने इनको नाम दिया हुआ क्यूबॉइडल. और इनके अंदर जो सेंट्रल न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्रेजेंट है राउंडेड शेप में, और इनका काम है एब्सॉर्प्शन करना, मतलब कोई भी एसेंशियल मटेरियल को सक कर लेना. जैसे किडनी में रीनल ट्यूबुल होते हैं, उसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होते हैं पीसीटी, वो एसेंशियल मटेरियल को फिर से रीअब्सॉर्ब करते हैं, तो इनका काम है एब्सॉर्प्शन करना. फिर ये सीक्रेशन भी करते हैं बिकॉज ये थायराइड ग्लैंड में भी अवेलेबल है, तो थायराइड ग्लैंड में T3, T4, थायरोक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन जैसे हार्मोन भी सीक्रेट करने में काम आएंगे. और एक्सक्रीशन मतलब जो यूरिया हमारी बॉडी में कलेक्ट होता है
उनको बाहर फेंकने का काम, एक्सक्रेशन करने का काम भी वो करते हैं, बिकॉज किडनी का काम है यूरिया को सेपरेट करना और फाइनली एक्सक्रेशन कर देना। तो ये हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। देखिए कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू ये क्या है? जैसे हमारे घर में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हम बीम मतलब कॉलम खड़े करते हैं। तो कॉलम कैसे होते हैं? थीन होते हैं। कॉलम कैसे होते हैं? थीन होते हैं और वो टॉल होते हैं। तो ये थीन और टॉल है, इसके लिए इन सेल्स को नाम दिया हुआ है कोलमनर। इनको पेवमेंट एपिथेलियम इसके लिए दिया गया क्योंकि टाइल्स के जैसे अरेंजमेंट, इनको क्यूबॉइडल इसके लिए नाम दिया गया हुआ है क्योंकि क्यूब जैसे। तो इनको कोलमनर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बीम कॉलम जैसे हैं, इनके लिए इनका नाम दिया हुआ, इसके लिए इसका नाम दिया हुआ कोलमनर। सो कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, इट मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड अदर इंटरनल ऑर्गन। कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू आर मेकिंग अ इंटरनल लाइनिंग ऑफ अ स्टमक, intestine and other internal organ. Other internal organ may be the kidney also. Yes, they are also found in kidney also. The cells are tall. The cells are tall and they are pillar-like. The cells are taller and pillar-like. ये चीज आप समझ लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग चीज है और काफी काम की भी। ये देखिए कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू को अगर आपको कैरेक्टराइज करना है दूसरे टिश्यू से, मान लो आपके सामने ये चारों के चारों टिश्यू में से एक सेंटेंस आ जाता है और आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है आइडेंटिफाई द कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सो डेफिनेटली ये सेंटेंस होगा। कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज दे आर ब्रॉडर फ्रॉम एंटीरियरली एंड नैरो फ्रॉम पोस्टीरियरली। वो आगे से काफी बड़े होते हैं और पीछे से छोटे होते हैं। मतलब समझ लो इस प्रकार से अरेंजमेंट होगी। They are broader from anteriorly and narrow from posteriorly. They are broader from anteriorly, narrow from posteriorly. So what are the columnar epithelial tissue? Columnar epithelial tissues are making a inner lining of a stomach, intestine and other internal organ which may include kidney also. But most probably आप इनको ध्यान दो, stomach और intestine को, and they are broader from anteriorly and narrow from posteriorly. They are broader from anteriorly and narrow from posteriorly. Nucleus is a oval and elliptical shape. इन दोनों के अंदर सर्कुलर राउंडेड है। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस इज ओवल और इलिप्टिकल एंड नियरली एट द बेसल एंड। वो सेंटर पे नहीं है, बेस पे है। बेस पे मतलब नीचे की तरफ। कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू वो वाले एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और कुछ इंटरनल ऑर्गन में भी होते हैं। इनका जो मेन फीचर्स है वो ब्रॉडर होते हैं सामने की तरफ से एंटीरियरली और काफी छोटे होते हैं पीछे की तरफ से पोस्टीरियरली। दे आर ब्रॉडर फ्रॉम एंटीरियरली, नैरो फ्रॉम पोस्टीरियरली। आगे की तरफ से बड़े होते हैं, पीछे की तरफ से छोटे होते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस है वो ओवल और इलिप्टिकल शेप में होता है, लेकिन वो सेंटर पे नहीं, बेस पे होता है। ठीक है। अब कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू के दो अलग अलग प्रकार बनते हैं। एक होते हैं सीलिएटेड, एक होते हैं नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड वो वाले होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं सीलिया, और ये वाइब्रेटरी मूवमेंट करते हैं। और नॉन सीलिएटेड वो वाले होते हैं जिनके अंदर सीलिया की जगह पर माइक्रोविलाई होते हैं और वो मूवमेंट नहीं करते हैं लेकिन रीअब्सॉर्प्शन करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, they are found in the upper respiratory tract. Upper respiratory tract means you can say nose, nasal chamber, nasal cavity, etc., etc. Means up to the pharynx, up to the pharynx, or you yes, up to the pharynx. Trachea, bronchi, bronchiole, lungs, alveoli, they are lower respiratory tract. So they are found in upper respiratory tract. Also found in the fallopian tube, which we also called oviduct in the female reproductive system. They contain large number of cilia. They contain large number of cilia and nucleus oval and placed at the basal end like columnar epithelial tissue. All the features of a columnar ciliated or non-ciliated columnar epithelial tissue will be similar like a columnar. Ciliated columnar epithelial tissue or either non-ciliated columnar epithelial tissue will have a common feature like they will be broader from anterior and narrow from posterior because they both are subtype of a columnar. No? So both will share the same feature like broader from anteriorly, narrow from posteriorly. But difference is that they are having a large number of cilia. And what is the function of cilia? Cilia perform vibratory movement. So vibrations like that vibratory movement are found. They are also found in the, you can say, internal ear. Yes. Non-ciliated columnar epithelial tissue. Cilia absent. In non-ciliated columnar epithelial tissue, cilia are absent, but they are replaced by
microvilli. And what are the function of microvilli? Microvilli increase the area of absorption. Microvilli increase the area of absorption. एक बार हिंदी में समझ लीजिए. नॉन सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं उनके मेन फीचर्स कोलमनर जैसे ही होते हैं, मतलब ब्रॉडर फ्रॉम एंटीरियरली, नैरो फ्रॉम पोस्टीरियरली. ये वाले फीचर्स इनके कॉमन हो गए. क्यों कॉमन हो गए? क्योंकि दोनों के दोनों कोलमनर एपिथेलियल के टाइप ही हैं, तो ऑब्वियसली उनके जो फीचर्स होंगे वो कॉमन होंगे. ब्रॉडर फ्रॉम एंटीरियर, नैरो फ्रॉम पोस्टीरियरली, आगे से बड़े हुए और पीछे से छोटे हैं. अब सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड में मेन डिफरेंस क्या है? सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब नॉस्ट्रिल में, नेसल चेंबर में, नेसल केविटी में और फेरिंक्स तक. और ये फैलोपियन ट्यूब में, मतलब जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं फीमेल में, जहाँ पे बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी रीजन में, तो पूरा फैलोपियन ट्यूब भी कोलमनर एपिथेलियल से बना हुआ है. और इनका जो न्यूक्लियस है वो कोलमनर के जैसा ही है, मतलब ओवल और नीचे सेट हुआ. और इनके अंदर सीलिया होते हैं काफी ज्यादा नंबर में, और सीलिया का काम है वाइब्रेटरी मूवमेंट करना. नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जिनके अंदर सीलिया की जगह पर क्या होते हैं? माइक्रोविला. और माइक्रोविला का काम है इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन. सो दिस इज अबाउट स्क्वीमस क्यूबोइडल कोलमनर टाइप ऑफ कोलमनर, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू. कम टू द ग्लैंडुलर. अब ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है? वैसे वाले एपिथेलियल टिश्यू जो एक साथ में आने के बाद एक ऑर्गन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लैंड्स. और ग्लैंड्स का मेन काम क्या होगा? सिक्रेशन करना. क्या सिक्रेट करना? हार्मोन सिक्रेट करना, हार्मोन प्रोड्यूस करना. ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज आर दोस एपिथेलियल टिश्यू इन व्हिच सो मेनी हार्मोन सिक्रेटरी cells are coming close together and make a one organ. That organ is called as a gland, and this gland is engaged in the process of a production of hormones. That's why they are called glandular epithelial tissue. I would like to tell you there are two type of gland. One is a endocrine gland, second one is a exocrine gland. See, I'll tell you very technically and very simply also, so that you will understand in 1 minute. Yes, endocrine gland का मतलब होता है ductless gland. endocrine gland का मतलब होता है ductless gland. Now you just imagine this is one gland, this one is endocrine gland and this one is exocrine gland, and this is the target. Target means where we wanted to transfer hormone. यहाँ पे हमें हार्मोन ट्रांसफर करना है तो उसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड. इसे हम कहेंगे टारगेट ऑर्गन, मतलब जहां पे हमें हार्मोन ट्रांसफर करना होता है, जिस ऑर्गन को हार्मोन की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन. अब यहाँ पे देखिए ये वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये एक स्पेसिफिक डक्ट है. दिस इज स्पेशल डक्ट व्हिच कैरी हार्मोन. तो ये डक्ट जो है वो कहां से कहां तक जुड़ी हुई है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से लेकर टारगेट तक जुड़ी हुई है. तो ये जो ग्लैंड है वो अपना हार्मोन इसके अंदर छोड़ देंगे और हार्मोन कहां जाएगा? हार्मोन जाएगा टारगेट सेल के अंदर. कहां जाएगा हार्मोन? हार्मोन जाएगा टारगेट सेल के अंदर. तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. लेकिन अब आप ये समझ के चलो, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें कोई डक्ट है ही नहीं, उसमें कोई पाइप है ही नहीं. तो क्या होगा? एक स्पेसिफिक ब्लड वेसल जो यहाँ से मूवमेंट करेगी, एक स्पेसिफिक ब्लड वेसल जो यहाँ से वहां मूवमेंट करेगी, तो फिर क्या होगा? ये ग्लैंड्स जो हैं वो ग्लैंड्स अपना हार्मोन डायरेक्टली इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ देंगे. यस, ये ग्लैंड्स अपना हार्मोन इस ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देंगे, फिर वो ब्लड स्ट्रीम उस हार्मोन को उस टारगेट तक लेके जाएगी. तो उसे हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड वो वाले ग्लैंड होते हैं जिनको हार्मोन ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक डक्ट या तो पाइप अवेलेबल नहीं होता है. तो ये ग्लैंड क्या करते हैं? अपना हार्मोन उस डक्ट में नहीं सॉरी आर्टरी में पोर कर देते हैं, आर्टरी में छोड़ देते हैं, आर्टरी में डाल देते हैं. फिर वो आर्टरी ब्लड अगर उस टारगेट तक लेके जाती है तो वो हार्मोन भी लेके जाएगी. इसके लिए हम इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, यस, ओवरी, टेस्टिस. इवन तो किडनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम करती है, बिकॉज किडनी इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करती है. ऐसे काफी सारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में. यस, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो हमारी बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड से लेकर टारगेट तक एक स्पेसिफिक पाइप के थ्रू, एक स्पेसिफिक डक्ट के थ्रू हार्मोन कैरी करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो ये वाला पूरा टॉपिक हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू, their classification into two category like simple and compound. Compound have only one example, stratum germinative, and simple have for example squamous cuboidal. For example means four sub classification, four sub category: squamous, cuboidal,
columnar and glandular. Columnar further divided into two categories: ciliated columnar epithelial tissue, non-ciliated columnar epithelial tissue.